Hello students and good morning everyone, and this is Vijay Singh. I'm going to discuss with you the financial accounting unit third. Topic is conversion of receipts and payment account into an income and expenditure account. That's it. That is a two-way topics. Means there is a numerical questions I will discuss with you. Some questions. If you I have more time, then I will discuss the more things. But sometimes I will discuss the some things that will be easy to view. First of all, I take these questions. As you see here, first thing, okay. So this is the illustration. I prepare income and expenditure account from receipts and payment account of Youngster Health Club, Jhansi for the year of 31st March 2013. ठीक है, year कुछ भी हो सकता है. That is not thing is important. So receipts and payment account is there. Receipts is and payments are there. Receipt is opening balance. Opening balance is means cash balance. हम इसको कह सकते हैं 2,400 rupees. Subscription is 16,000. Then fee, entrance fee 200 rupees. Sale of investment 8,000. Sale of old Almira 800 rupees. बुक वैल्यू ऑफ जो थी उसकी वो 1800 थी, जिसको हम 800 में बेच दिए. डोनेशन है 2500, तो दैट इज द रिसिप्ट, और टोटल रिसिप्ट इज 29,900. देन गो फॉर द पेमेंट्स. पेमेंट इज रेंट 3,600. स्टेशनरी इज 450 रुपीज, एंड दिस इज अ सैलरी 4,800. परचेज ऑफ इक्विपमेंट 5,500. एक्सपेंसेस ऑफ कॉम्पिटिशंस हमने कराए थे, जो भी है 2,800. Miscellaneous expenses 650 and furniture purchase 4,000. Closing balance is 8,100 rupees. So that is a closing cash balance. So this is the question, and that's on the basis of the receipts and payment account. Then go for the preparing of income and expenditure account. So this is an income and expenditure account which is prepared. ठीक है, तो so first of all you just write down the book value of Youngster Health Club income and expenditure account for the ended year 31st March 2013. So first of all you just see the first column is expenditure, second column is amount, then income and amount. तो इनका रेंट जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे. जैसे कि रेंट होता है आपका 3,600 है, इसमें कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है. स्टेशनरी 450 है, सैलरी 4,800 है, एक्सपेंस एंड कॉम्पिटिशन 2,800 है, मिसलेनियस एक्सपेंस 650 है, लॉस ऑन सेल ऑफ अलमीरा 1,000 है. सरप्लस यहाँ पर आ जाएगा कब, जब हम इनको देख लेंगे. सब्सक्रिप्शन 16,000, एंट्रेंस फी 200 और डोनेशन 2,500. तो टोटल इज 18,700. 18,700 माइनस ऑल दीज थिंग्स. इनको यहाँ से यहाँ तक हम माइनस कर देंगे, तो आपको जो है जो भी अमाउंट आता है आपका, वो जैसे यहाँ से यहाँ तक आप इसको प्लस करेंगे, इनका जो प्लस आएगा उसमें से फिर 18,700 में से इसको माइनस कर देंगे. ठीक है, तो देन वी गेट द 5,400 रुपीज. तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं 0 0 0 0 0 and 5 plus 5 10 10 0 1 carry 1 6 7 4 11 11 and 8 19 and 8 27 plus 6 33 33 plus 4 37 7 3 carry 3 3 6 6 plus 4 that is 10 10 plus 2 12 12 plus 1 of 13 and plus 5 18. तो ये ओके हो जाता है. तो दैट इज द अमाउंट which is surplus. तो income over expenses expenditure, तो excess of income over expenditure, that is known as the surplus. ठीक है, तो in case of income and expenditure, as you know very well, तो only the surplus and deficit is has come, not the net profit and net loss. So it is come under the different categories of the things. So इस टाइप से आप जो है income and expenditures को convert कर सकते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट को कन्वर्जन कर सकते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. कुछ जो एडजस्टमेंट्स होती हैं वो भी आपके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. तो एडजस्टमेंट ऑफ आइटम इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप देखेंगे. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, एंड देयर मे बी सर्टेन आइटम्स व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड इन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट. तो ऐसा होता है कि जो चीज़ वहाँ नहीं होती वहाँ हमें लिखनी पड़ती है.
However, these need to be incorporated in income and expenditure account. Following are the some most common adjustment for carried forward. The first thing is subscription. Subscription received. It is an item of income of is a recurring nature and it appears on the receipt side of the receipt and payment account. तो ये जो है सब्सक्रिप्शन आपका वो रिसिप्ट होता है और इनकम एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में आपको ये हमेशा दिखाई देगा. And it may be include arrears of previous years and received in current years and may also be include receive of for the next year is also there. तो ये एडवांस यानी कि पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों तीनों साल का आपका जो है सब्सक्रिप्शन आपको दिखाई देता है. एंड देयर में भी अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर. अगर कोई अमाउंट होता है जो रह जाता है तो उसको हम इसमें आउटस्टैंडिंग जोड़ देते हैं. एंड सम मेंबर्स माइट हैव पेड करंट years option to getting and previous years for the purpose of income and expenditure account. So the subscription for the current year is only is to be taken into consideration. तो जब हम इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं तो उसमें केवल करंट ईयर का ही हम देखते हैं, बाकी का नहीं देखते हैं. तो देयर इज नीड टू फॉर एडजस्टमेंट टू द वी मेड अंडर प्रोविजन. इस कारण से हमें फिर एडजस्टमेंट करनी पड़ती है. तो यहाँ पर वेरियस एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू द सब्सक्रिप्शन आर मेड. फर्स्ट थिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर अगर है आपका तो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का तो क्या एंट्री होगी जनरल एंट्री सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट. ठीक है, तो इस तरह की जो एंट्री है वो आप यहाँ पर बना देंगे. तो सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर ड्यू नॉट रिसीव्ड. ओके, देन एडजस्टमेंट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर आल्सो अकाउंट. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को भी हम यहाँ पर नहीं किस टाइप से दिखाएंगे, इस टाइप से दिखाएंगे इसको. तो यहाँ पर इनकम में दिखाएंगे सब्सक्रिप्शन एड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर. तो उसको ऐड कर देंगे तो आपका जो एडजस्टमेंट है वो पूरी हो जाती है. ठीक है, तो दिस आइटम विल आल्सो एडेड टू द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एक्सपेंडिचर अकाउंट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड आल्सो बी शोन इन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. ठीक है, ये इसको बैलेंस शीट के असेट साइड में भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को आपको शो करना पड़ता है. तो इस तरीके से चीजें आपको याद रखनी है. दूसरी चीज है सब्सक्रिप्शन ड्यू इन द प्रीवियस ईयर बट रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर. अगर कोई सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर में ड्यू है और वो करंट ईयर में आपको मिल रहा है तो जनरल एंट्री विल बी सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट. ठीक है, तो यहाँ पर ये एडजस्टमेंट फॉर सब्सक्रिप्शन ड्यू इन लास्ट ईयर बट रिसीव्ड इन करंट ईयर आपका कर देंगे. तो इस टाइप से इलस्ट्रेशन है. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 15,000. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st December 1,500 rupees. Subscription received in 2012 account of 2013 year 800. Subscription received in year 2013 outstanding amount of 12 400. Then subscription received in 2013 it is for the 2014 6 year 600. तो ठीक है, तीनों साल के यानी कि जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आपका हुआ 2013 में वो कितना 15,000 का. जो 12 में रिसीव्ड हुआ वो 800 रुपये का है और जो 14 में रिसीव हुआ वो 600 रुपये. 14 का मतलब 13 में आएगा और एडवांस मिल गया. तो इस तरीके से एडजस्टमेंट्स आउटस्टैंडिंग भी है और अकाउंट भी है. तो इसका एडजस्टमेंट आप देखेंगे. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2013 15,000 है. ऐड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 1,500. ऐड रिसीव्ड इन 12 and 13 इन 12 for 13 13 में 12 में ही 13 के लिए मिल गया 800 रुपये एडवांस मिला तो 800. लेस रिसीव इन 12 जो 12 में मिला वो माइनस कर देंगे 600 एंड लेस एडवांस को भी माइनस कर देंगे 600. देन सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 16,300 रुपीज. जब हम इसको इनकम एक्सपेंडिचर में डालेंगे तो आपका ये अमाउंट आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेंगे. यहाँ पर पर्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट साइड में जो भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट है 600 400 रुपीज फॉर द 12. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 600 रुपीज. देन कैश आपका जो करंट ईयर का है वो यहाँ आ जाएगा. इनकम कैश अकाउंट 15,000 इन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट 1,500 रुपीज. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2012 800 रुपीज. टोटल इज 17,300 रुपीज. देन इट विल बी माइनस दिस 4 plus 6 यानी कि 1,000 रुपीज दैट विल बी माइनस डिडक्टेड. देन इट कम्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना है 16,300 रुपीज जाएगा आपका. तो इस तरीके से जो न्यूमेरिकल टर्म्स है उनको आप यहाँ पर शो कर सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा कुछ रेंट होता है. रेंट में भी इसी टाइप के एक्सपेंडिचर्स आते हैं. रेंट पेड इज एन आइटम एक्सपेंडिचर एंड इट मे आल्सो बी रिक्वायर्ड some adjustment in rent. The adjustment required to be made and to be amount of the rent paid during the year of as follows. Rent outstanding for the year of this. Rent paid in current year advance for the next year. Rent in the current year on account of account outstanding in the previous year and in paid previous year account current year. तो ये इस टाइप की चीजें आती हैं जैसे कि वहाँ हुआ. यहाँ पे अलग अलग एंट्रीज आप देखेंगे. तो रेंट
पहली एंट्री है रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट ड्यू बट नॉट पेड। ठीक है, ड्यू हो गया लेकिन हमने पे नहीं किया, तो एंट्री बन जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट पेड इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रेंट पेड इन एडवांस फॉर द ईयर। तो करंट ईयर में ही आपने अगले साल का भी आपने पेड कर दिया तो रेंट इन एडवांस हो जाएगा। रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट पेड फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल का जो अमाउंट था आपने पे नहीं किया तो इस साल में हम उसको पे कर रहे हैं, तो रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आप कर देंगे। देन रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेड इन एडवांस। ठीक है, रेंट पेड इन एडवांस लास्ट ईयर बीइंग ट्रांसफर टू रेंट अकाउंट। ठीक है, लास्ट ईयर में ही, यानी कि जैसे कि 2000 अभी 21 चल रहा है, 2020 में ही आपका रेंट 2021 का भी आपको मिल गया तो एडवांस पेड आपको मिलेगा, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेड है, तो ये रिसीव हो रहा है। तो कैलकुलेशन ऑफ रेंट अकाउंट टू बी शोन इन द करंट ईयर एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो रेंट पेड इज इन करंट ईयर, यस, एड रेंट पेड इन एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर फॉर द करंट ईयर। ठीक है, रेंट पेड इन एडवांस इन द प्रीवियस ईयर फॉर द करंट ईयर। ठीक है, पिछले साल में ही करंट ईयर का भी एडवांस दिया तो ये भी प्लस हो जाएगा। एड रेंट ड्यू इन करंट ईयर बट नॉट पेड, अगर आपका कोई ड्यू है तो वो पेड नहीं हुआ है तो उसको भी आप ऐड कर देंगे, आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। लेस आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर प्रीवियस ईयर इन करंट ईयर, प्रीवियस ईयर का कोई आउटस्टैंडिंग है तो वो करंट ईयर में अगर आपको दिख रहा है तो उसको माइनस कर देंगे। एडवांस रेंट पेड फॉर नेक्स्ट ईयर, अगर अगले साल के लिए आपने एडवांस में कोई पे कर दिया तो उसको भी माइनस कर देंगे। देन अमाउंट ऑफ द रेंट टू बी डेबिटेड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो जो इनका डिफरेंस वो आएगा ऐड करके माइनस करके, वो क्या है, जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट ऑफ डेबिट अकाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, तो लाइक दिस दिस इज इसी टाइप से डेप्रिसिएशन आप दिखाते हैं, तो डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम एंड इज टू बी चार्ज ऑन एवरी फिक्स्ड asset as land, building, furniture, and other things. So as you know very well, I discuss that thing in the following different terms with you in my basic accounting transaction questions. So the जो भी depreciation होता है that will be deducted from the assets and it will be shown on the debit side of in profit and loss account. But here you show that depreciation on the इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन द साइड ऑफ एक्सपेंडिचर्स। तो डेबिट साइड में आपको इसको प्रेजेंट करना होता है एंड जो भी एसेट्स होती है उसकी वैल्यू में से इसको कम कर देते हैं। तो एंट्री जो होती है वो ये बनती है, जनरल एंट्री फॉर द सेम डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट एंड सूजी एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये दोनों तरफ से चला जाता है। तो इसको डेबिट कर रहे हैं यहाँ पे क्रेडिट टू डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन कहाँ जा रहा है, इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में जा रहा है। तो इस तरीके की जो एंट्रीज हैं वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो इस टाइप से बहुत सारी चीजें हमने आपके साथ डिस्कस की। So I hope you understand all these things and regarding the video lectures, conversion of receipt and payment account into income and expenditure account. So I hope you understand. Thank you very much.